Why old people in Pakistan don't work? Young कौन सा कर रहे हैं? Dear Junaid bhai, I hope this email finds you in great spirits. I recently had the chance to visit South Korea. साउथ कोरिया भी ट्रिप लेके जाया जा सकता है. वियतनाम के बाद साउथ कोरिया करेंगे. And an interesting observation struck me from the moment I landed at the airport. I wanted to share this experience for your Ask Anji Swag series, hoping it could spark an insightful discussion. The first thing that caught my eye at the airport was the travel car used for mobility assistance being driven by an elderly man. The baggage counter was managed by an old lady, and general store inside the airport had a man in his 70s working behind the counter. This pattern continued as I navigated through my trip, from the bus driver who took me to the hotel to the concierge at the front desk, who was also an older lady, and even the bartender and an impeccably dressed man in his later years mixing drinks with finesse. Throughout my travels in South Korea, I saw a remarkable level of economic participation from the older generation. It wasn't that the country lacked young people, rather, there seemed to be a culture that embraced and valued contributions from those over 65. This made me reflect on the situation back home in Pakistan. Here, unless someone is forced by dire financial circumstances / majboori, older individuals are seldom seen in the workforce. The participation of older women is even less common, and this observation holds true even in cities like Lahore and Islamabad. It makes me wonder why in Pakistan our elders often gravitate towards a strictly religious routine, spending their days engaging in conversations with peers or dedicating their time to the mosque. While there is nothing wrong with spirituality and religious activities, why is economic contribution from the elderly seen as such an anomaly here? I'd love to hear your thoughts on why our society often chooses this path for the older generation, whether we can shift towards a culture that values their potential contributions to the economy. Looking forward to your insights. Best regards. So भाई, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन एक भाई ने शेयर की. रिसेंटली साउथ कोरिया गए तो इन्होंने देखा कि यार वहाँ पे ओल्डर लोग बड़ा काम करते हैं एज अपोज टू पीपल इन पाकिस्तान और इवन इन इंडिया, कि यहाँ पे जो है ओल्डर जनरेशन इतना काम नहीं करती. और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट के पूरी चेन में, वैल्यू चेन में जो है पीपल ओवर 60 और पीपल ओवर 50 काम कर रहे हैं. ये कल्चर फार ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा है. एक तो देखें, सबसे बड़ी चीज़ एक्सरसाइज. उनकी ज़िंदगियों में डाइट और एक्सरसाइज बहुत अच्छी है. आप जापान में भी अगर देखें, जो लोग रिटायर्ड हो भी जाते हैं या वो जो रिटायर नहीं भी होते, सब ने अपना एक काम बांधा हुआ है कि वो अपने काम के अलावा एक और काम करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, दिस इज़ एन इनसाइट शेयर्ड विद मी बाय अ पर्सन हु वाज लिविंग इन जापान, कि वहाँ पे जो ओल्डर लोग हैं वो आके काम से आके या तो फिर गली के पौधों को पानी देते हैं या छोटी मोटी सफाई, या जैसे पर नाला जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, या कोई पेंट उखड़ा हुआ है तो वो पेंट कर दिया. बट दे डू समथिंग बिकॉज वो अपने सिर्फ घर को घर नहीं समझते, उनका घर उनका गली मोहल्ला भी होता है, क्योंकि गुजरना तो वहीं से ही है ना. अब मैं जिस पॉश एरिया, सपोज्ड पॉश एरिया, कराची में क्या ही पॉश है, तो उसकी अगर मैं आपको हालत दिखा दूँ, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री लगता है, मगर प्राइसेस आसमान को छू रही हैं. एनीवे, सो एक्सरसाइज हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है. हम वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं. अगर आपका एम्स्टर्डम वगैरह जाना हो या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे चूँकि दे आर वन ऑफ द हैप्पीस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे 70-80 साल की ख़वातीन साइकिल चला रही होंगी. दे वुड बी फिजिकली एक्टिव. आप किसी क्रूज़ में भी जाएँ तो आपको वहाँ पे एक्टिव टूरिस्ट बूढ़े ही मिलेंगे. और सो डाइट का एक बड़ा मसला है. हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लिए जाते हैं, प्रोटीन कम लिया जाता है, इसलिए आपको साउथ एशिया में हाथ थिन होंगे, पॉट बेली बाहर होगी, जैसे कि अब मेरी भी अब आपको नज़र आ रही है, राइट. सो दिस इज़ डेफिनेटली अ डाइट प्रॉब्लम. और फिर दूसरा माइंड सेट का भी एक बहुत बड़ा मसला है. हमने अपनी सारी ज़िंदगी जो करना है, हमने इबादतें और नमाज और ये सारी चीज़ें हमने बुढ़ापे के लिए रखी हैं, कि बुढ़ापे में बस हमने मस्जिद में पूरी ज़िंदगी लोगों को धोखा देना है, हक मारना है, सब करना है, और मस्जिद में झाड़ू दे देना है 70 साल की उम्र में और जन्नत मिल जाएगी. तो हमने ये भी एक बनाया हुआ है. और दूसरा ये कि अगेन, चूँकि हम जल्दी रिटायर कर देते हैं, तो अब इंसान को ज़ाहिर है उसको एक सोशल सर्कल तो चाहिए, तो वो फिर उसको मस्जिद में मिल जाता है. मस्जिद में लोग मिल जाते हैं, सलाम दुआ हो जाती है, तो वो एक उनका, और जो कि मस्जिद का एक डेफिनेशन भी है, इट्स अ कम्युनल प्लेस, राइट.
तो उनको एक कम्युनिटी वाली फीलिंग मिल जाती है। अदरवाइज़ घर में वो सारा दिन कितना ही ARY देखेंगे। तो इसलिए चूँकि हमारे यहाँ दूसरी कम्युनल स्पेसेस की इतनी वो नहीं है। अब ज़ाहिर है हर कोई तो कंट्री क्लब और गोल्फ क्लब और कराची क्लब और जिम खाना की मेंबरशिप तो नहीं ले सकता। वहाँ पे भी अगर आप देखें आपको ओल्डर अंकल्स मिलेंगे। वाई? बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ मनी के साल की 40 लाख की मेंबरशिप लेंगे, एंड बी इट्स अ कम्युनल स्पेस। और उनको नेटवर्किंग भी हो जाती है, उनकी ज़रा ठरक भी पूरी हो जाती है। ठरक इन द सेंस के पॉलिटिक्स डिस्कस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सो अनप्रोडक्टिव हरकतें जो करनी है तो वहाँ कर लेते हैं। बहुत कम होते हैं जो जिम खाना में उसको एक्चुअल स्पोर्ट्स के लिए ही यूज़ कर रहे थे। ज़्यादातर जो है इट्स फॉर नेटवर्किंग पर्पसेस, एटलीस्ट इन कराची, दैट द प्लेसेस दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। वरना जिम खाना जाने वाले के तो पेड होना ही नहीं चाहिए, बट होता है। एनीवे, सो ये एक भी है, हम वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं और वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। अब्बू जी अब आपने काम नहीं करना, अम्मी जी आपने काम नहीं करना, और फिर वही डाइट से ही रिलेटेड जो है फिर इश्यूज़ होते हैं। आर्थराइटिस हो जाता है, और 55-60 के बाद जो है लोग मेंटली भी अपने आप को बस रिटायर कर देते हैं कि हाँ अब तो मैं बस नमाज रोज़ा और मुसल्ला और पोते पोतियाँ और फिर गलत शादियाँ कराना, और यही मेरा अब ज़िंदगी में काम है। और ये कि फिर बैठ के ऑर्डर भी चलाना है और नौकरों को झाड़ झपट करनी है, बहू से लड़ना है। अगेन फरागत में फिर यही चीज़ें काम आती हैं और यही चीज़ें समझ आती हैं। माइंड सेट चूँकि हमारा ये है कि जी 60 के बाद अब ज़िंदगी ख़त्म है और हम जीना छोड़ देते हैं, तो फिर यही एक वजह है कि देखिए अकेलापन और यही चीज़ आपको एक तो चिड़चिड़ा भी बनाती है। हैंस हमारे बूढ़े हजरात जो हैं और ख़वातीन भी चिड़चिड़ापन उनमें ज़्यादा आ जाता है, बिकॉज दे फील यूजलेस, एंड ऑब्वियसली एक वो डिप्रेशन भी होता है कि ओके नाउ आई एम गोइंग अवे। वो ज़िंदगी जीते ही नहीं है, वो पहले ही नहीं जीते हुए आए होते और फिर वो बूढ़े हो जाते, कहते यार मैं तो कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, तो फिर वो एक और चीज़ उनको लेके डूब जाती है। एंड अगेन देखें इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर फाइनेंसेस भी हैं। हम एक गरीब मुल्क हैं। अब हमारे अम्मा अब्बा, हमारे यहाँ वो कल्चर ही नहीं है ना। हमारे यहाँ कल्चर है बच्चों को पढ़ा लिखा के, चूँकि बच्चे इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, बड़ा होकर ये हमें खिलाएगा। उनका एक अपना सेपरेट अकाउंट होता ही नहीं है कि बेगम बच्चे जब हम फारिग तहसील हो जाएंगे, बच्चों से बच्चे अपनी शादियों में हो जाएंगे और आगे पीछे हो जाएंगे, तो हम फिर ट्रैवल भी किया करेंगे। फिर ये चीज़ एक बहुत ही सर्टन और एक बहुत ही छोटे से तबके के पास है जो कि ये चीज़ें उस तरह ज़िंदगी जीता है। अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू फाइनेंसेस इज वेल। तो चूँकि हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो एक्टिविटी रह दे के फिर हज उम्रा रह जाती है, ठीक है ना। और उसी को लोग एम करते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा वही करते हैं। बहुत कम लोग होंगे, आप भी अपनी फैमिलीज़ में आगे पीछे देखें, जो एक्चुअल ट्रैवल के लिए निकलते हैं। ना सिर्फ ये कि सऊदी और इराक़ जा रहे हैं अपने रिलीजियस राइट्स के लिए, बल्कि अपनी ओल्डर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो अगेन फाइनेंसेस भी एक बहुत बड़ा इशू प्ले करते हैं। सो या ये एक बहुत बड़ी वजह है। और हाँ, लॉन्जेविटी जो है वो भी और ऐड करती है, माहौल बड़ा ऐड करता है। मेरे अम्मी के मामू माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनको और लंबी ज़िंदगी दे। मेरे अपने मामू फौत हो चुके हैं, बट उनके मामू जो कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब थी उनकी, यहाँ रिटायर हुए, उसके बाद अमेरिका माइग्रेट हुए, एंड ही स्टिल वर्किंग। वो और फिट हो गए। अभी वो आए थे, उनका पेट नाम की चीज़ नहीं थी, खैर वो पहले भी नहीं थी, ही वॉज ऑलवेज सुपर एक्टिव। मगर वही ना, देखिए लाइफस्टाइल चॉइसेस भी होती हैं। आप जो 20, 30, 40 साल की उम्र में अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, या बॉडी को मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बेड पे पड़े हैं सारा दिन रील्स देख रहे हैं, इसका आफ्टर इफेक्ट्स फिर आपको 40, 50, 60, 70 में फिर नज़र भी आने लगते हैं। आई रिलीजियसली फॉलो शहनाज, जो कि MTV मोस्ट वांटेड की होस्ट थी, शहनाज ट्रेजरी। तो उनकी एक रील मेरी नज़रों से गुजरी। हर फादर इज़ 81, और भाई वो यही कहते हैं कि सही टाइम पे एक्सरसाइज शुरू की थी तो आज वो बेंड भी कर सकते हैं, बेड से आराम से निकल भी जाते हैं, ऊपर कोई चीज़ करनी हो वो उठा लेते हैं, और जो है कोई अगर बॉटल खोलनी हो, कोई जार खोलना हो, वो भी मतलब ही माशाल्लाह ही उसकी स्ट्रेंथ है। तो वही ना, जो शुरू से आपका लाइफस्टाइल चलता आ रहा है वो डिटर्मिन करता है। अब हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादा सेडेंटरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल है नहीं। मौसम भी फिर एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब आप कौन 40-45 की गर्मी में या 2 किलोमीटर की वॉक करेगा या रनिंग करेगा, राइट? हर कोई तो AC वाला जिम नहीं अफोर्ड कर सकता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो माय अंकल ही गॉट अ न्यू लाइफ। तो एक माहौल भी फिर जब आप आगे पीछे देखते हो ना, सारे बुड्ढे चल रहे हैं, चलो मैं भी थोड़ी हिम्मत कर ही लेता हूँ। और फिर ज़ाहिर है फिर आपको मजबूरी काम करा भी देती है, तो वहाँ सर्वाइव करना थोड़ा इतना आसान नहीं है। और फिर वही काम वाला आदमी जो है, जिसको शौक़ होता है काम का, वो फिर हिम्मत पकड़ ही लेता है।
सो यहाँ पे सोसाइटल रीजंस भी हैं बहुत सारे, ना सिर्फ हेल्थ, ना सिर्फ डाइटरी प्रेफरेंसेस, ना सिर्फ एक्सरसाइज के प्रेफरेंसेस, बट ऑल्सो माहौल क्या है जी, सारे बुड्ढे थड़े पे बैठे तो मैं भी बैठ जाता हूँ, राइट। जब देखेंगे यार सारे ही काम कर रहे हैं, कोई पौधों को पानी दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई शजरकारी कर रहा है, कोई फलाना ढिमकाना काम कर रहा है, तो मैं भी कर लेता हूँ। सेम फॉर अगर आप अमेरिका में भी एयरपोर्ट पे जाएं, ये बड़ा मिसकंसेप्शन था और ये मेरे जहन में भी था। वो एक ज़ाहिर हमने जिस तरह की कॉमेडी सुनी है बचपन में कि जी PIA की एयरोसिस बुड्ढियाँ होती हैं और एमिरेट्स की तो ऐसी चमचमाती हुई रशियन यूक्रेनियन होती हैं। बट इफ़ यू ट्रैवल फार एंड वाइड तो आपको पता चला जाएगा कि ज़्यादातर दुनिया में, क्योंकि एयर होस्टेस का काम, ये जो क्रू मेंबर होती है उसका काम आपकी आंखों को ठंडा करना नहीं, उसका काम है आपको सर्व करना, ठीक है। तो अमेरिका में अगर आप साउथ वेस्ट एयरलाइंस में जाएं, यूनाइटेड में जाएं, फ्रंटियर में जाएं, स्पिरिट में जाएं, वैसे जाएं नहीं, सिर्फ साउथ वेस्ट सबसे अच्छी है और यूनाइटेड सबसे अच्छी है, अमेरिकन इज़ ऑल्सो ओके। तो वहाँ पे आप देखें सारा स्टाफ जो है वो अबव 50 अबव 60 होता है, राइट। और एयरपोर्ट स्टाफ भी जो होता है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त नवीन भाटिया सुन भी रहे होंगे, वो माशाल्लाह ही इज़ गॉन थ्रू पता नहीं कितनी तो हार्ट सर्जरीज हो गई हैं, इतने तो दिल में जगह ही नहीं बची, पहले ही इतनी ख़वातीन भी वहाँ हैं, ऊपर से टाँके भी लग गए उनको। तो ही स्टिल वर्क्स एट LAX। और फिर LAX पे जब हम लैंड किए थे, अभी जब मैं और माय कॉलीग वी वर देयर, तो वी वर ग्रीटेड बाय अनदर पाकिस्तानी अंकल हु वाज इन हिज लेट 50s। वो काम कर रहे हैं LAX में, ऑपरेशन संभाल रहे थे। फिर उन्होंने और कॉलीग से मिलवाया, एक सिख अंकल थे, ही वाज आल्सो लेट 50s। तो एयरपोर्ट्स वगैरह पे इधर उधर आप देखें तो ज़्यादातर आपको अबव 40-45 वाले ही आवाम मिलती है, एंड दे डू अ ग्रेट जॉब। तो माहौल बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। सो येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मगर ये ऐसी चीज़ है जो रातों रात चेंज नहीं हो सकती, और ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए ज़ाहिर है नेशनल लेवल पे काम हो। अब जैसे मोदी जी योगा करते हैं तो उन्होंने शिक्षा दी योगा की, तो फिर अब पब्लिक भी, वैसे इंडिया में तो कल्चर भी है इसका। अगर आपको याद हो मुन्ना भाई MBBS में लाफिंग क्लब, लाफ्टर थेरेपी वाला वो जो कर रहे होते थे, ठीक है ना, तो ये चीज़ें तो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और हज़ारों साल से योगा तो वहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, तो दे अंडरस्टैंड द साइंसेज ऑफ इट। और वो मेरे साथ भी एक बड़ा फ़नी वाक़या होता, वो आपने सुना ही होगा, वो जो योगा वाले, मैं गाड़ी में सो रहा था, खैर नॉट गोना रिपीट दैट। रेपिटेशन की बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, बड़ी स्टोरीज रिपीट हो जाती हैं, सो सॉरी, ये हो जाती है गलती। एनीवे, so yes, these lifestyle changes have to be in place अभी से जवानी में, ताकि आपकी गाड़ी लंबी चल सके। सो लेट्स होप हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे इन चीज़ों को फ़रोग़ दिया जाए। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, एंड लाइक आई ऑलवेज से, अ हेल्दी मैन वांट्स 10,000 थिंग्स, अ सिक मैन वांट्स ओनली वन। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।